Good morning, students. In this video, we have discussing about the when the new partners bring in proportionate capital. Sometime the capital of a new partners is not given in the question. He may be required to bring in proportionate capital. In such cases, the new partner's capital will be calculated on the basis of old capital of the old partners remaining after all adjustment and revaluation. For example, the capital of A and B after the all adjustment revaluation was 24,000 and 16,000 respectively. They admitted C as a new partner with 1/5 share in the profit. C's capital will be calculated as followed. Share of A and B after the giving 1/5 share to C is equal to 4/5. Thus, if the 4/5 fifth share of profit is combined capital of A and B is equal to 40,000, then total capital of the firm is equal to 40,000 into 5/4 is equal to 5,000. Then C's capital for 1/5 share of profit is equal to 50,000 into 1/5 is equal to 10,000. And that clear? Now we have taken the illustration. Sahaji and Nimish are partners in a firm. They share profit and loss in the ratio 2:1. Since both of them especially able and sometimes they find it difficult to run their business on their own. Gauri, a common friend, decided to help them and they are admitted into partnership for 1/3 share. She bought her share of goodwill in cash and proportionate capital. At the time of Gauri admission, the balance sheet under as follows. First, we have seen here liability capital of Sahaji and Nimish. General reserve 30,000, creditors 30,000, employee provident fund 40,000. And come on the asset side, balance sheet machinery 1,20,000, furniture 80,000, stock 50,000, sundry debtors 30,000, cash 20,000. It was decided to there are some adjustment, reduce of value of stock by 5,000, depreciate furniture by 10% and appreciate machinery by 5%. Third है 30,000 of debtors proved bad. A provision of 5% was created on sundry debtors for doubtful debtors. Goodwill of the firm was evaluated 45,000. Prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet. Okay, first we come on the revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी हमारी इंक्रीज होती हैं दे आर एसेट्स में, दे आर कम क्रेडिट साइड एंड दोज लॉसेस कम ऑन डेबिट साइड. फर्स्ट वी हैव सीन हियर स्टॉक में कमी किया गया है. आपके फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, ठीक है. यहाँ आपके
जो सन्डी डेप्टर्स हैं बैड ड्यूज के रूप में 3000 एंड टू प्रोविज़न 5% है, तो हमारे टोटल डेप्टर्स हैं 30,000 में, और उसमें 3,000 बैड डेप्ट्स हैं, तो हम उनको लेस कर देंगे। उसके बाद से 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1,350। अब इसके बाद टोटल करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो वी हैव ट्रांसफ़र टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफ़र टू साजी कैपिटल निमिस कैपिटल, तो इन देयर ओल्ड रेशियो, इनकी ओल्ड रेशियो क्या रही है 2:1। अब कमाते हैं हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। देखें बाई बैलेंस BD 1,20,000 एंड 80,000। जनरल रिजर्व है, उसको भी हम लोग वर्ल्ड पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। क्या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल में भी जो है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है उसको कि जैसे कि हमारी टोटल यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट्स में लिखें कि गौरी शेयर ऑफ गुडविल, टोटल जो है हमारी कितनी गुडविल है 45,000, लेकिन वह आके निकल रही है 1/3 के लिए, और 1/3 के लिए आ रही तो उसकी शेयर कितनी हुई 15,000, और 15,000 को हमारे जो पार्टनर्स हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब 2:1 के रेशियो में। और फिर आ जाते हैं हम लोग अब जो है कि डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस हुआ है, उन दोनों पार्टनर्स का कर देंगे, ठीक है। अब इस प्रकार हम दोनों पार्टनर्स की टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो बैलेंस आ जाती है वह आ जाती है हमारे शाह के लिए 1,42,433 एंड निमिष की आ जाती है 91,217। तो अब जो है आते हैं हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए कि हमारी गौरी की कैपिटल क्या होगी। कम ऑन द वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट टू ब्रिंग बाय द गौरी, ठीक है। फर्स्ट टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स फॉर 2/3 शेयर, तो हम दोनों को पार्टनर्स को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,33,650 और यह 2/3 शेयर के लिए है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, उसको कर देंगे 3/2, तो हो जाएगा आपका 3,50,475। अब हम लोग गौरी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेंगे, उसका 1/3 करके, तो आ जाएगा 1,16,825। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल ले लेंगे, और फिर एसेट साइड में आते हैं। मशीनरी हमारी इंक्रीज़ हुई है 6,000 से, तो पहले हमारी मशीनरी थी 1,20,000। 1,20,000 में हम ऐड कर देंगे 600, तो आ जाएगा 1,26,000। फर्नीचर है, फर्नीचर डिप्रिशिएट हुआ है, तो इसमें 80,000 है और 10% की हुई है, तो आ जाएगी हमारी 72,000। फिर स्टॉक भी हमारा रिड्यूस हुआ है, 50,000 था, 5,000 की लेस हुई उसमें, तो ये आ जाएगा 45,000। सन्डी डेप्टर्स की बात करें, सन्डी डेप्टर्स हमारे टोटल थे 30,000 के, उसमें से हमने लेस कर दिए 3,000, और फिर उसके बाद से
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इस दोनों को लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25,650। अब बात करते हैं कैश की, तो कैश वैसे ही रहने देंगे ना। फिर बात करते हैं हम लोग लास्ट में बैंक की। बैंक में कैसे होगा कि इसका बैंक का अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जैसे कि गौरी ने क्या क्या लाया है, कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है, दोनों, है ना। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। आज के लिए इतना ही।